हैप्पी दिवाली। अब अंकित काफी देर से एक गाड़ी का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और ऐसी वैसी नहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एब्सोल्यूट रणगाड़ा जिसे मराठी में कहते हैं। आणि दिवाली का दिन था, ब्रांड न्यू गाड़ी आई थी थैंक्स टू माय फ्रेंड राजेश हमारे पास। तो मैंने सोचा कि घर पे जो पूरे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको लेके गाड़ी में बैठ के एक छोटा सा ड्राइव किया जाए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इज। मोबाइल फोन था, सो आई हैव गॉटन एब्सोल्युटली रॉ इमोशंस मेरे सारे फैमिली मेंबर्स से महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के ऊपर। हमारी फैमिली में बिटवीन माय फादर एंड आई वी हैव बीन कंसिडरिंग कि एक बढ़िया सी डीजल एसयूवी लेके आए। He and I both drive absolutely identical cars. We own the Maruti Suzuki XL6, बढ़िया MPV है, फुल्ली ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट हम चलाते हैं। तो हमारा वो बेंचमार्क है। एक साल से both of us have been owning our respective XL6s. He's got a white one, I've got a blue one. We love that car. तो सोच रहे हैं कि एक गो एनीवेयर गो एनी टाइम एब्सोल्युटली रोबस्ट एसयूवी ले आए, विच इज वाई स्कॉर्पियो क्लासिक को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एज एन ऑप्शन। नया इंजन, नई टॉर्शनल रिजिडिटी, ये सब काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो विद दैट बैकग्राउंड हम गाड़ी में बैठे हैं एंड वीव गॉन फॉर अ ड्राइव एंड दिस इज दैट वीडियो। We've all come out for a Diwali drive. Including the child's best friend. The papa is driving the Jeep that he's always been fond of, but he is struggling with it because अभी XL6 automatic चलाने की आदत हो गई है। Because it is 2080 and they are still making manual cars. I'm sitting in the passenger row with my mother and there are kids in the back who absolutely love the third row. Yeah. Do you all love the third row? Yes. Yes. That is But the children car house. is immaterial for them. Children Yeah. house. They just love the third. It definitely gives a huge first floor वाला feeling जब गाड़ी चला रहे हैं। Cabin is very very Spartan कुठे जाते तुम्ही? आणि struggling to turn on the lights. Everything is very very basic for a 20 lakh rupee car. आणि it feels like an archaic thing that you're driving. And the kids keep falling. कळत नाहीये, गाड्या कुठून येतायत. Chaos is happening. पापा जरा आरामातच घ्या, मला ऑलरेडी भीती वाटते। It's a लिटरली 4 दिशांनी गाड्या आहेत. it's a one bedroom house. आणि हे काय? Is it? Yes. It feels like that? I'm feeling like that. Bedroom. It's a one bedroom house. वा मम्मा. कुठून का ठेवलं असतं? Miss, I'm just like that. कारण पापांच्या ड्रायव्हिंग वर No, two bedroom. Children bedroom. Yes. And myself and Ankush is in kitchen. Who's not driving? Left? Hall and two bedroom. Left का right? हाँ, right. Oh, those not So I see the charm of this for people who want a car that does anything and everything, but कीमत इसकी आधी होनी चाहिए। 20 लाख रुपए आज की तारीख में does not make any sense। 10, 12, 13 लाख रुपए तक ठीक है। This is for 20 lakhs on road. Yeah, and I mean this Android your system that they've done. यहाँ पे गोरेगांव एसवी रोड पे 500 रुपए में बहुत अमेजिंग नहीं, सिस्टम। 500 में नहीं, but it's a very low quality. Steering is good and chunky. The seat, But it is very hard. It is very hard. steering is hard ना. No, ते but all heavy the असणारच. materials पण पापा also- तुम्हाला पाय जो आहे मांडीच्या खाली म्हणजे गुडघ्याच्या मागच्या साईडला असं अडतंय ना सीट। सो इसका जो सीटिंग एरिया इट्स एक्चुअली क्वाइट लॉन्ग। हे पण जास्त Yeah, it's very congested. If you see this, see the plastic hits the knee over there, and there's absolutely no place between his right leg and the door. So it's very compact बैठने के लिहाज से। ये फ्लाइट का इकोनॉमी में बिठा देते, अमेरिका भेज देते ना 24 घंटे के लिए। Sorry, क्या He's करेगा comparing वापस? it to an economy seat in a 24-hour flight in America. The middle row actually is very comfortable क्योंकि bench seat है, and my daughter was also like this feels more comfortable because my XL6 has bucket seats, so she likes bench seat ताकि वो लोग फैल के बैठ सकते हैं। तो wide seats हैं, comfortable है, but overall materials, fabric नाही मजा नाही आली। बाटली ठेवायला फक्त इकडे जागा आहे। तो मात्र दुनिया इधर की उधर हो जाए, ड्राइवर को कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ड्राइवर को कुछ नहीं होगा। That is the कस्टडी feeling. में बैठे। That is the feeling father is getting. Like I said, that's exactly what you buy the Scorpio for. But 20 लाख आज की तारीख में, जब 10 लाख में आपको मैग्नाइट मिल रहा है जिसमें दुनिया के तमाम फीचर्स हैं, वेन्यू मिल रही है,
कशाला तुला कुठे I think the जायचंय? feature to cost ratio has phenomenally changed in India, no? तो 20 लाखात कियाचं काय काय मिळेल तुला यार? नहीं 20 lakh seems a complete stretch. The fact that my mom can do this yogasan inside the Scorpio is a testimony of किती जागा आहे. Of course, Height खूप आहे. my mom is 5 feet tall, so there's that. She's happy she can do this. We are having a heated debate about 2022 में या 2023 में स्कॉर्पियो क्लासिक जैसे गाड़ी की जरूरत क्या है. तो आई थिंक उसके लिए सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि यस आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे तमाम दूसरी गाड़ियों में, फिर वो हैचबैक हो, एमपीवी हो, एसयूवीज हो, हर गाड़ी में आपको इससे ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे. मटेरियल्स इससे 1000 गुना बेहतर मिल जाएंगे. लेकिन फक्त तुम्ही दोघं चहा घेणार आहे, नाही कोणीच नाही घेणार. जेवायची वेळ झाली. नाही 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 नाही. जिस किस्म की स्पेस और धड़ धाकटपना मराठी में जिसको कहते हैं कि इसको किसी भी सड़क पे ले जाओ, सस्पेंशन तगड़ा रहेगा, पावर सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में कम से कम स्पीड करके भी इसमें तगड़ी पावर आपको मिल जाएगी. सो वो जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट अ सेंसिबल कार बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ. अगर ये 5-7 लाख रुपए और सस्ती होती, ये टेरिफिक वैल्यू फॉर मनी इट वुड हैव कंटिन्यूड टू बी. तो बोलेरो उस लिहाज से या बोलेरो न्यू उस लिहाज से फिर भी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं. 20 लाख के लिए स्कॉर्पियो इज ओनली फॉर दोज पीपल जो सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो का टशन चाहते हैं, नाम बैग चाहते हैं. ऑफ कोर्स तगड़ी पावर है, तगड़ा सस्पेंशन है. द कार स्टिल मूव्स अराउंड कि आप बोट में बैठे हो, इतनी झूलती है गाड़ी. ब्रेक मारने पे थर्ड रो वाले सीट पे जो बैठे हैं सीधे वो फर्स्ट रो में पहुंच जाते हैं. इतना झटका मारती है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि थर्ड रो में जो लोग बैठे हैं वो पकड़ वगैरह के बैठे हैं. सो ये सब चीजें हैं जो स्कॉर्पियो क्लासिक को एक चैलेंजिंग गाड़ी बना देते हैं आज की तारीख में. पापा एसी ऑन करा ना. ऑल्सो ह्यूज कैबिन है तो एसी कूलिंग में वक्त लगता है. मुंबई में इट्स ऑलरेडी 35 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ ऑब्वियसली रियर वेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है. ओ वेट, देयर आर रियर वेंट्स हियर. हां पण हे काही इफेक्टिव्ह वाटलेच नाही. रियर वेंट्स है लेकिन कुछ मिला नहीं यहाँ पे. वर नाही आहे. आपल्याला एक्सेल 6 ची सवय हो, सगळं वर आहे ना इकडे. I don't know यार. एसी चांगला आहे. ये जो सब हार्ड मटेरियल्स है ना, सो ये मुश्किल है. एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ये पीछे का दरवाजा बंद करेंगे, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर इन द कैबिन एंड द एयर प्रेशर, ये बंद नहीं होगा दरवाजा पहले इसमें. The girls are just shocked, but let's see if the door closes properly. Okay, अभी हो गया बंद. But generally इसको 1-2 बार ट्राई करना पड़ता है बंद करने के लिए. Yeah, third धाकड़. I think just the weight of the sheet metal adds to the almost 2-ton weight of the Scorpio, and huge alloys, huge profile. Everything is just huge, huge, huge. That's my dad, busy wishing happy Diwali to everyone. You know when the Scorpio will make sense? If you ask me, मुझे लगता है this needs to be fully electric. Does not need to make a sound. Of course, that will add to the torsional rigidity and how stable the गाड़ी will be, because lower center of gravity, because all the battery cells will be in the base bottom floor of the car. अभी बहुत झूलती है यार, मतलब बोट की तरह हिलते रहती है ब्रेक मारने पे. It will make sense as a 20 lakh rupee fully electric Mahindra SUV. That will be the real EV क्रांति. Otherwise सेंस नहीं बन रहा है. ये 11, 12, 13 का एवरेज डीजल, 20 लाख रुपए का प्राइस टैग, नहीं, मला मजा नहीं आली. The small things, the way I sit here, it is so compact and congested. My right thigh is already hitting this. It is, मतलब, I don't know how to explain it. Everything feels so cramped up. इतनी बड़ी गाड़ी, but for the driver, if there's not enough place to sit, पूरा मूड ऑफ हो जाता है यार. एंड देन देयर इज दिस टच स्क्रीन जो ऑब्वियसली जब सनलाइट होता है, बहुत धूप होती है, देखना मुश्किल हो जाता है. इट इज ऑफ अ वेरी वेरी पुअर क्वालिटी. एंड लेट मी शो यू द बेस्ट PS de la Resistance. Take a look at this fully blown out overexposed rear camera.
It's not a feature, it's a bug. This is quad HD. Look at this. That's like negative. बॉस, इसको रिवर्स में पार्किंग करना इज अ फुल अपर बॉडी वर्कआउट. आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज द स्टीयरिंग इज सो हैवी कि हाला पार्किंग करना फुल ब्लोन अपर बॉडी वर्कआउट. Nope, not happening, not working, not for me at all. I understand and appreciate बहुत लोगों के लिए ये गाड़ी है. Nope, not for me. महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है क्योंकि एक तरफ जो स्कॉर्पियो एन है वो भयंकर एडवांस्ड फीचर्स एक बढ़िया पैकेज में आपको लेके आते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आप कौन से शहर में, जैसे मैं मुंबई में हूं, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट अगर आपको लेना है तो एटलीस्ट 1 साल का वेटिंग पीरियड तो स्कॉर्पियो एन में है ही. तो दैट इज कंप्लीटली रेडिकुलस एंड बुलशिट, राइट? 1 साल कौन इंतजार करेगा एक नई गाड़ी लेने के लिए? तो उस लिहाज से मुझे लगता है स्कॉर्पियो क्लासिक वुड बिकम अ गुड वाइबल ऑल्टरनेटिव. लेकिन महज आधा पौना घंटा इसको चलाने के बाद ट्रैफिक में एक मैनुअल गाड़ी इतने साइज की, आउच. मुझे पर्सनली ये बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट लगता है स्कॉर्पियो क्लासिक के अस्तित्व का. लेकिन मैं जानता हूं कि स्कॉर्पियो क्लासिक मेरे जैसे शहरी ट्रैफिक में चलाने वाली इंसान के लिए शायद नहीं होगा. ये एक हाईवे माइल मंचर बन सकता है अगर कोई इंटरसिटी, इंटरस्टेट, बहुत ज्यादा हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं जहां सड़कें शायद इतनी अच्छी नहीं हैं. लेकिन फिर भी अगर सड़कें अच्छी नहीं होगी तो ये बहुत उड़ते रहती है गाड़ी, अनस्टेबल महसूस होती है इवन एट लो स्पीड्स. अगर आप 1-2 लोग गाड़ी में बैठेंगे या पीछे के जो लोग होंगे, दे कीप गेटिंग टॉस्ड अराउंड इन द कार. देखिए ओवरऑल 2022 में प्रॉब्लम क्या है? कुशाक जैसे टाइट बॉडी वाले जो कार्स हैं, या क्रेटा या सेल्टॉस, हमें जो आदत हो गई है, जिस किस्म की रिफाइनमेंट, जिस किस्म के फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड क्योंकि 8, 10, 12 लाख रुपए की गाड़ियों में इतने खचाखच फीचर्स भरे होते हैं. तो स्कॉर्पियो क्लासिक आज की तारीख में एक बहुत ही आउटडेटेड डायनासोर जैसी गाड़ी लगने लगती है. साइज में डायनासोर, एंड डायनासोर इस लिहाज से भी कि अगर अपडेट नहीं हुए, एवोल्यूशन नहीं हुआ तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो महिंद्रा को काफी इसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा कि भाई क्या करें स्कॉर्पियो क्लासिक का. आई थिंक द बैज एंड जो लॉयल्टी है गए 20 साल से स्कॉर्पियो नाम की, उसका काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है. सो आई विल एंड दिस वीडियो सेइंग कि मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हूं विथ द न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक. आई अंडरस्टैंड ये यूज केस बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर के लिए है, लेकिन शहरी मेरे जैसे कार लविंग, हाईवे मंचिंग, माइल मंचिंग इंसान के लिए स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं है. क्या है उसका जवाब? ये आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में नया जो ऑटो एक्सपो होने वाला है जनवरी-फरवरी 2023 में, होपफुली उसमें हम देखेंगे द न्यू अवतार ऑफ व्हाट द न्यू एसयूवीज वुड लुक लाइक. बट स्कॉर्पियो में बैठ के एक ये भी अच्छा रिमाइंडर मिल जाता है हाउ फार द इंडियन ऑटोमोटिव एंड एसयूवी सीन हैज कम, और कितना गजब का मार्केट बन गया है जहां कस्टमर्स को एक से बढ़ के एक बेहतरीन ऑप्शंस कम से कम दाम में मिलने वाले हैं. व्हाट एन एक्साइटिंग टाइम फॉर इंडियन कस्टमर्स. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं और गाड़ी के वीडियोस ले आऊं आपके लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में लिख के बताइएगा कौन सी गाड़ी आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूं. दिस इज अंकित साइनिंग आउट. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ लवली डे.